Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see dictionaries. Okay, so dictionary. Okay, in earlier video, we had seen in short what is dictionary. Okay, now let's see what is dictionary in detail. So dictionary is also a collection of elements, but they do not have indexing. They do not have index. They have key and value pair. Okay, अभी देखो इसमें अगर ये देखो ये this name is a key और इसकी value क्या है alas. Age is a key while value is 30. Do you get this? ऐसे की वैल्यू पेयर में वो होते हैं. सो अगेन डिक्शनरी इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट दे आर पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. इसे लिखने का दे आर अनऑर्डर एंड म्यूटेबल. अनऑर्डर मतलब क्या? दे डू नॉट हैव इंडेक्सिंग. अगर आपको कोई एक्सेस करना है वैल्यू तो आप उसके की से एक्सेस करोगे. इंडेक्सिंग से एक्सेस नहीं होता है डिक्शनरी में. समझ में आया? ओके. म्यूटेबल मीन्स वंस दे आर क्रिएटेड दे कैन बी चेंज. मतलब चेंज हो सकता है. Okay, list and dictionary mutable है, tuple are immutable. Do you get this? Okay, they are defined with curly braces. Okay, list आप square bracket से define करते हो. Okay, square bracket. tuple आप parenthesis से define करते हो. and जो आपकी dictionary है वो आपको curly braces से define करना पड़ता है. Okay, this curly braces. Okay, I can draw properly. So this is a curly braces से आप define करते हो dictionary को. इसका syntax देखो, ये dictionary name है. Using assignment operator we are store key and value pair. की एक की देने का, ओके, की देने का, एक की देने का, उसके बाद वैल्यू देने का. किसने? कोलन से सेपरेट होकर आपको वैल्यू देना है. और एक एलिमेंट और एक की वैल्यू पेयर होने के बाद यहाँ पर कॉमा है. ओके, सी देखो, यहाँ देखो, एक की है, की के बाद कोलन है, कोलन के बाद एक वैल्यू देने का और वैल्यू के बाद यहाँ पर कॉमा है. ओके, डू यू गेट दिस? यानी दिस इज द फुल वन एलिमेंट. इस एलिमेंट कैसे होते हैं? की एंड वैल्यू पेयर में होते हैं. वैसे की टू एंड वैल्यू वैसे आपको देने का. ओके, यहाँ पर देखो एग्जांपल, एक माय डिक्शनरी इज डिक्शनरी नेम, उसके बाद की वैल्यू पेयर से एलिमेंट्स के. अगर एम्प्टी डिक्शनरी है तो आपको बस कर्ली ब्रेसेस देने का. ओके, नेक्स्ट डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी. एक पर्सन, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक है, एक डिक्शनरी, और इसमें और एक डिक्शनरी उन्होंने डाला है. डू यू गेट दिस? समझ में आया? ये हम स्क्रीन पर करके देखते तो आपको समझ में आएगा इन डिटेल. ओके. Okay, now let's see dictionary. What is dictionary? A dictionary is a set of elements, but they are arranged in key value pairs. Okay, they are not order, means they are unorder, and they are mutable. Okay, unorder means they do not have any indexing. If you want to access the elements, then you access with the keys, not with the index. Okay, and mutable means once they are created, they can be changed. Okay, now let's declare a tuple, a dictionary. So the dictionary, we have to give first name dict1. Okay, you can give anything. Using assignment operator I will declare it. So a dictionary is given in a curly braces. Okay, inside there you have to write elements in the format of key and value. So one will be key using colon, and I will write here value. I will write value as 1. Okay, then I will give comma, then second key I will write here as 2. Okay, 2. Now I will give 3 as a key and its value will be 3. Okay, now there are 3 elements in the dictionary. So this whole is a one element, and this element is in the format of, this is a 1 will be the key and this is a value. Do you get this? Now let's try to access this one, this first element through index. तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0. तो देखो, इससे हम एक्सेस करते हैं. पहले हम प्रिंट करते हैं. देखो, प्रिंट करेंगे होल डिक्शनरी को, DICT dict1. ओके, इसको प्रिंट करते हो तो ये हमारी डिक्शनरी कंप्लीट प्रिंट हो गई. अभी एक को एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स से करेंगे. मतलब ऑर्डर है क्या देखते हैं हम, ये ऑर्डर है या अनऑर्डर है. ओके, वेट. नाउ लेट्स सी. आई विल राइट print dictionary name DICT dict1, and in square bracket you have to give a इंडेक्स नंबर. अभी पहले एलिमेंट को प्रिंट करेंगे इसकी इंडेक्स 0 होगी. राइट, नाउ लेट्स एंटर सी. एरर. व्हाई? बिकॉज दे आर अनऑर्डर. अनऑर्डर मींस दे आर एक्सेस थ्रू देयर कीज. दे हैव नो इंडेक्सिंग. इसको इंडेक्सिंग नहीं होता है. अगर आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसकी की से एक्सेस करना पड़ेगा. समझ में है? अभी सेम इसकी की से एक्सेस करते हैं, देखते हैं. प्रिंट dict1, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? अभी की लिखेंगे. की क्या है? 1.
तो एंटर सी 1 प्रिंट हो गया, इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। समझ में है? ऐसा आपको करना है। समझ में है आपको डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर अनऑर्डर। अनऑर्डर मींस इसको इंडेक्सिंग नहीं होती। अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो किससे एक्सेस करना पड़ेगा? की से एक्सेस करेगा। म्यूटेबल यानी चेंज हो सकता है। अभी चेंज हो सकता है, देखिए कैसे चेंज होगा। आपको डिक्शनरी लो, DICT डिक्ट 1, और इसमें सॉरी डिक्ट 1 में आपकी कौन सी इंडेक्स नंबर 1, इसको 1 को आपको क्या करना है? अभी 1 को आपको 4 करो, FOUR, मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एंटर मारो और वापस हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को। DICT डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं DICT 1 और एंटर सी। 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 4 होगी ना। जो हमारे ये 1 की वैल्यू क्या करनी थी? हमें 4 करनी थी। तो 1 की वैल्यू 4 हो गई। समझ में है ये? तो दे आर अनऑर्डर एंड म्यूटेबल। समझ में है डिक्शनरी का? Okay, okay, in next video we will see the test series, important questions and MCQs for this chapter, and from the next video then we will cover with the second chapter. Till then,